Good morning, students. I hope you all are fine and doing your homework and also enjoying this learning experience. Students, today we will start explanation of chapter number 2, that is nutrition in animals. So let's start. Nutrition means, what is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body or utilization in the body. In case of animals get their food directly or indirectly from the plant. There are certain animals which depend directly on the plants, like herbivores, and indirectly dependent organisms like carnivores. So in case of animal nutrition, it includes nutrient requirement, mode of taking food, and its utilization in the body. Now nutrient requirement means the nutrient which are required by the animals, like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Then mode of taking food, by which mode they are getting their food. Now this food is very complex in nature and this cannot be utilized by the organisms directly. So this food has to be broken down into simpler substances so that it can be easily utilized by the organisms. So this breaking down process is known as digestion. मतलब जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी खाना हमारा होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो इनको सीधे बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इनको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना है. और ये जो ब्रेकिंग डाउन जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं डाइजेशन. तो ये जो भी फूड है वो एनिमल लेता है, उसका क्या होता है, अल्टीमेटली डाइजेशन होता है. So digestion is the process by which complex food substances are broken down into simpler substances. तो ये डाइजेशन के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. सो थ्रू दैट डाइजेस्टिव सिस्टम फूड पास्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो उसको हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. देर आर डिफरेंट एनिमल्स, तो उनका फूड भी डिफरेंट होगा और उनका जो फीडिंग मोड है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द स्नेल का जो फूड है वो क्या है, ग्रास, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है उसका, च्यूइंग. सिमिलरली एंट है, उसका जो फूड है वो है इंसेक्ट. अब इंसेक्ट जो है वो उसका प्राइमरी फूड है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो और कुछ नहीं खा सकती है, लेकिन ये इसका प्राइमरी फूड है. एंड द मोड ऑफ फीडिंग इज स्क्रैपिंग, मतलब वो उसको स्क्रैप करती है. स्क्रैप का मतलब जैसे मान लो कि चम्मच से हम अगर कोई चीज़ है वो आप खाना खा रहे हो और चिपक गई है तो उसको हम वहाँ पे स्क्रैप करके उसको खाते हैं. दैट इज नोन एज स्क्रैपिंग. सो बाय दिस वे द एंड इज टेकिंग इट्स फूड. सिमिलरली ईगल, हमिंग बर्ड. सो this table is also given in your NCERT book, so you can fill that also to get more insight. Here are these different organisms and different mode. Like hummingbird, the mode of feeding mode was sucking. So here the hummingbird is sucking the nectar from the flower. In case of digestion in humans, there is a specialized structure, that is digestive system is present. Now this digestive system is also known as by alimentary canal और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तीनों एक ही बातें हैं. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं तो भी एक ही बात है, एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे तो भी एक ही बात है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट बोलेंगे तो भी एक ही बात है. तो ये जो जीआई ट्रैक्ट है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे अदर ऑर्गन्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं और ये सब मिलकर के और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बनाते हैं. तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. तो मेन पार्ट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये माउथ से स्टार्ट होगा और इट एंड्स एट द एनस. नाउ दिस माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी. दिस माउथ opens into a thin tube that is known as food pipe or esophagus.
Now this esophagus opens into a bag-like structure known as stomach. From the stomach there is a small tube-like structure, a coiled structure actually, that is known as small intestine. The small intestine opens into the large intestine, and large intestine finally opens into the anus. In the alimentary canal there are certain glands also present which are very important in the process of digestion, like salivary gland, liver, and here is the pancreas. So you can see all these in this zoomed image. Here is the liver and here is the pancreas. So buccal cavity, salivary glands, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. These are the main parts of the human alimentary canal or the digestive system. So now we will study this digestive system in detail, each part in detail. So first of all, the buccal cavity or the mouth. The food is taken into the body through the mouth. जो भी खाना हम खाते हैं, that is taken into the body by this mouth. So the process of taking in of this food is called ingestion. मतलब जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसमें देर आर 5 स्टेप्स एक्चुअली. सबसे पहले क्या होगा, जो फूड हम खाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेशन. उसके बाद में क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद में वो फूड है वो एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्प्शन के बाद में वो फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक या सेल्स तक पहुंचेगा. उसके बाद में वो सेल्स उसको यूटिलाइज करेगी. यूटिलाइज मीन्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोटीन बनाना है या कुछ भी उनको बिल्डअप करना है, तो उसको हम बोलेंगे असिमिलेशन. और फाइनली क्या हो जाएगा उसका इजेशन. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा बॉडी से बाहर. तो देर आर 5 स्टेप्स एक्चुअली. तो हम एक एक करके सारी स्टेप्स को पढ़ते चलेंगे. सबसे पहले बात कर रहे थे हम इंजेशन की. तो इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इन. अब नाउ दिस टेकिंग फूड इन इज टेक्स प्लेस बाय mouth. So the mouth has salivary glands which secrete saliva, and saliva breaks down starch into sugar. starch क्या है, starch एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. तो ये जो स्टार्च है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा. अब देखो जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन है, फैट है. तो ज़रूरी नहीं है कि सबका जो ब्रेकिंग प्रोसेस है वो माउथ में स्टार्ट हो जाए. कुछ सब्सटेंसेज है उनका डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है, कुछ है उनका स्टमक में स्टार्ट होता है. बट अल्टीमेटली सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ही एब्जॉर्ब होते हैं. तो इन बकल कैविटी विच इंक्लूड्स टीथ, a set of teeth is present. Then a tongue is present. टंग का काम क्या है, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड swallow द फूड. जो भी फूड हम खा रहे हैं, सपोज अगर सैलिवरी ग्लैंड ही ना हो तो क्या होगा, और फूड है वो ड्राई फॉर्म में रह जाएगा. तो ना तो उस फूड को ठीक से क्या बोलते हैं हम swallow कर पाएंगे, ना ठीक से उसको च्यू कर पाएंगे. तो यहाँ पे सलाइवा क्या करता है, सलाइवा मिक्स होकर के उस फूड को सॉफ्ट करता है और उस फूड को हम आसानी से बॉडी के अंदर है वो ले पाते हैं. इसके अलावा जो टंग है उसका क्या काम है, एक तो बोलना है जो हम बहुत यूज में लेते हैं उसको, बट दूसरा टंग का जो काम है यहाँ पे इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड. जैसे आप अगर कुछ खाना पका रहे हो तो चम्मच का यूज करते हो ना उसको हिलाने के लिए बार बार, तो दैट मिक्सिंग इज एक्चुअली हियर बाय द टंग. और यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा उल्वा, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एपिग्लोटिस. तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप है इस फूड पाइप के पास में ही एक विंड पाइप होता है. और ये जो विंड पाइप है, अगर जब हम खाना खा रहे हैं और उस वक्त है, देखिए यहाँ पे देखिए ठीक से, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एपिग्लोटिस जो प्रेजेंट होता है,
अब यहाँ पे विंड पाइप होता है और इधर पे फूड पाइप होता है। जब हम खाना खा रहे हैं तो कई बार क्या है कि हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, तो गलती से कभी ये जो फूड है वो जब विंड पाइप में चला जाता है तो क्या होते हैं, हमको हिक्कप या जो कफ है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, वो क्या करता है, जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो इस विंड पाइप को वो कवर कर लेता है, तो फूड सीधा का सीधा इसोफिगस में चला जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कभी कभी जब हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं साथ में काम, तो उस केस में कभी कभी वो फूड है वो इसमें चला जाता है और उससे क्या है, हिक्कप या फिर जो कफ है, कफिंग है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। ओके, नाउ टंग। ये जो टंग है उस पर क्या है, डिफरेंट टाइप। टंग का काम क्या है, इट हैज सर्टन टेस्ट बड्स ऑल्सो विच हेल्प इन द टेस्ट ऑफ फूड, टू डिटेक्ट द टेस्ट एक्चुअली। सो डिफरेंट एरियाज आर देयर, लाइक सबसे जो टिप वाला जो एरिया है सामने वाला, वहाँ पे हमें स्वीट का पता चलेगा। अगर आपने कोई भी स्वीट जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, वो यहाँ पे अगर आपने रखी है तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो स्वीट है। ऐसा आप करके देख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सोर जो चीज़ है उसका आपको यहाँ पे पता चलेगा, सॉल्टी चीज़ है उसका यहाँ पे पता चलेगा। क्यों चलेगा, बिकॉज ये जो डिफरेंट एरियाज है यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स है, इन्हीं के थ्रू हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पता चलता है। लाइक आजकल जो सेंसर्स आते हैं मोबाइल में, तो सेंसर्स का भी तो वही काम है। जब हम मोबाइल को जैसे ऑटो ऑटो रोटेट जो हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी सेंसर है। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप पोजीशन चेंज करते हो आपके मोबाइल की, तो वो भी आपकी स्क्रीन की पोजीशन को चेंज कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जिस टाइप के रिसेप्टर एक्चुअली ये हैं, उसी हिसाब से ये आपका जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो टंग का काम क्या हो गया, एक तो क्या है मिक्सिंग ऑफ फूड, और दूसरा है डिटेक्टिंग ऑफ टेस्ट। नाउ जो टीथ हमने जो बकल कैविटी में जो टीथ हमने पढ़ा था, तो उसमें है जो टीथ है वो हमारे दो टाइप के टीथ होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ in the early childhood, a set of teeth growth in the children that then fall off after a certain age, 6 to 8 years। मतलब जब हम पैदा होते हैं उस वक्त जो टीथ हमारे स्टार्टिंग में जो आते हैं, हालांकि पैदा होते ही नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आपको 6 मंथ या 7 मंथ्स के बाद में जैसे ही टीथ आना स्टार्ट होते हैं, और वो 6-7 साल तक वो आपके माउथ में ही रहते हैं, तो दीज आर नोन एज मिल्क टीथ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं? देखो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो काउंट करो और बताओ मुझे फिर। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ये डिफरेंट क्यों होते हैं परमानेंट टीथ से, या इनको मिल्क टीथ क्यों बोला है? देखो, परमानेंट टीथ का मतलब है कि ये टीथ है जो एक बार आपके उसमें आ गए माउथ के अंदर, तो ये वापस जब गिरेंगे नहीं जल्दी से, और जब गिर जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, और मतलब लाइफ टाइम तक ये वही टीथ है वो आपके बॉडी में, उसमें बकल कैविटी है उसके अंदर रहेंगे। तो इनिशियली जो टीथ आते हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 years। बट उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि वो लंबे टाइम तक है वो आपके बकल कैविटी में रहते हैं, और उनमें से अगर एक बार कोई टीथ है वो अगर गिर जाता है तो फिर वो दोबारा से नहीं आएगा। ओके, नाउ दिस टीथ आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप के ये जो टीथ है वो होते हैं। क्या क्या नाम है इनके? इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब 4 टाइप के टीथ है तो इनका फंक्शन भी अलग अलग ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसाइजर। ये जो टीथ आपको नजर आ रहे हैं, ये जो बिल्कुल सामने वाले, इनको क्या बोलते हैं हम? इंसाइजर्स। कितने होते हैं ये देखिए, अपर जा और लोअर जा दोनों दे रखा है, उससे हम टोटल टीथ है वो भी काउंट कर सकते हैं बकल कैविटी में कितना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इंसाइजर्स की, तो इंसाइजर कितने होते हैं? 4 अपर जा में और 4 ही लोअर जा में। एक्चुअली जितना अपर जा में होगा उतना ही लोअर जा में होगा। तो
यहाँ पे 4 है तो इनका काम क्या है, बाइटिंग और कटिंग। तो जब भी आप कोई चॉकलेट खा रहे हो या कुछ भी चीज़ खा रहे हो, जैसे बाइटिंग कहाँ पे काम है, जैसे पिज्ज़ा खा रहे हो, पिज्ज़ा का पीस खा रहे हो, तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, सामने वाले टीथ को ही काम में लोगे। तो यहाँ पे उनका काम क्या हो गया, बाइटिंग। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपके कैनाइंस। यहाँ पे 2 ऑन दी अपर जा एंड 2 ऑन दी लोअर जा, ये जो बिल्कुल शार्प जो टीथ जो नजर आते हैं ना, ये वाले, तो दीज आर कैनाइंस। कैनाइन का काम क्या है, पायर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ द फूड। जो भी फूड आप खा रहे हो तो उसको पायर्स करना, उसको टीयर करना। अगर मान लो कि फूड थोड़ा टफ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको काटने के लिए जो काम में आएगा वो आएगा आपका कैनाइंस। कैनाइंस मोस्टली जो कार्निवोर्स होते हैं, बिकॉज उनको रॉ फ्लैश है उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसलिए उनके जो कैनाइंस है वो काफ़ी शार्प होते हैं और साइज में उनका थोड़ा बड़ा होता है। बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, इन प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स फिर नेक्स्ट आपके आ जाएंगे कैनाइन के बाद के जो 2 टीथ इधर और 2 इधर, यानी अपर जाम में 4 हो गए और नीचे ही लोअर जाम में भी 4 हो गए। तो इनका जो काम है वो क्या है, ग्राइंडिंग है और च्यूइंग है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग बोथ यू कैन से। और उसके बाद में 3 और 3 6, 6 आपके अपर जामे होंगे और 6 ही लोअर जामे होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मोलर्स। तो अल्टीमेटली 4 टाइप ऑफ टीथ आपके हो गए, इंसाइजर हो गए, कैनाइंस हो गए, प्रीमोलर्स हो गए और मोलर्स हो गए। टोटल कितने हो गए, 32। बट आई एम श्योर आपके जो बगल कैविटी है उसमें 32 टीथ है वो नहीं होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। उसका रीजन बता सकता है कोई मुझे, चलो सोचो आप और बताओ मुझे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही इतना ही पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से क्विक रिकैप कर लेता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोड है न्यूट्रिशन के वो, और जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी का, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपको देखना है। डायग्राम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप बिना देखे डायग्राम को बना सको और उसको अच्छे से लेबल कर सको। और देन बकल कैविटी, माउथ, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है और उनका क्या क्या फंक्शन है, and then the teeth. So up to this we will study, and tomorrow we will start the next part of the digestive tract. Next part क्या आएगा, esophagus. Esophagus के बाद में stomach, तो वहाँ पे क्या होता है वो चीज़ें हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप ये कुछ आपको इसमें जानने को मिला होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर ये जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सो सी यू टुमारो।